So today I want to talk about the joy and the power of the friendship with Holy तो Spirit. पास्टर आज बात कर रहे हैं जब पवित्र आत्मा से हमारी मित्रता होती है उसका आनंद और उसका सामर्थ्य. Write down the joy and the power सामर्थ्य of the friendship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ मित्रता का आनंद और सामर्थ्य. So last Friday we talked about the friendship with the Holy Spirit. जैसे पास्टर ने पिछले शुक्रवार को बताया पवित्र आत्मा के साथ मित्रता की. So when you have the friendship with the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के साथ की मित्रता होती है, and when we have the friendship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा मित्रता होती है, you have the power, आपके पास सामर्थ्य होता है, and you have the joy, आपके पास आनंद होता है, and you have the anointing. आपके पास अभिषेक होता है. See, Holy Spirit is the one who carry आप ये पवित्र आत्मा ही है जो लेकर घूमती है. anointing. अभिषेक Holy Spirit is the one who carry जो लेकर घूमते हैं. joy, आनंद, peace, love, प्रेम self-control. और नियंत्रण. That is why we have already learned last Friday, Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Holy तो Spirit. जैसे कि हमने पिछली बार पास्टर ने बताया गलातियों 5:22 जहाँ पर पवित्र आत्मा के फलों के बारे में 9 फल के बारे में लिखा हुआ है. See, without the Holy Spirit, जब तक पवित्र आत्मा न हो you will never have peace. आपके पास शांति हो ही नहीं सकती. You will never convicted Jesus is God. आप यीशु मसीह को प्रभु बोल ही नहीं सकते. You will never have patience. आप में धीरज नहीं हो सकती. You will never have आप self-control में संयम नहीं हो सकता. by your power, अपने खुद के सामर्थ्य, by your strength. अपने You ताकत will से never have peace. आप में शांति नहीं You हो will सकती. never have self-control. आप में सेल्फ कंट्रोल You नहीं हो will never, overcome temptation. सकता. आप परीक्षाओं में गिर जाएंगे, उनको पार नहीं कर पाएंगे. You will never have to believe that Jesus is God. आप ये नहीं विश्वास कर पाएंगे यीशु मसीह प्रभु है. You will never have power and authority and anointing and healing, cast out demon, and bless the people and deliver the people. All these are the work of the Holy Spirit. तो आपको छुटकारे में, चंगाई में किसी चीज में विश्वास नहीं हो पाएगा जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है. This is the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. He is the one who moved. वही है जो घूमता है. But I will tell you again. पर पास्टर कह रही है He walked under the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा अपने नाम से नहीं लेकिन यीशु मसीह के नाम से ही काम करता है. So in the name of Jesus तो Christ, यीशु के नाम में Holy Spirit पवित्र आत्मा anoint us. अभिषेक देता है, Bless us. हमें आशीष Give देता है, us peace. हमें शांति Give देता है, us joy. हमें आनंद देता So है. the Holy Spirit is the one who carry all the power. तो पवित्र आत्मा ये जो सारा सामर्थ्य लेके घूमता है. But you can't say that this in the name of Holy Spirit, don't pray and don't पर ask. आप ये नहीं कहते पवित्र आत्मा के नाम से ये चीजें हो जाए या पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते. I repeat again. पास्टर कह रही है Father, पिता, Son, पुत्र, Holy Spirit. पवित्र आत्मा They are one. ये तीनों एक है But their work are different. लेकिन तीनों का काम अलग है. For the new people who are here, जो लोग नए last Friday they are not पास्टर ने here. उदाहरण दिया Simple था example. जैसे कि We are same body. हम एक शरीर है. Head is God. सर परमेश्वर, Hand is Jesus. हाथ यीशु है, Leg is the Holy Spirit. पैर पवित्र आत्मा. But the leg work is different. लेकिन पैर का काम अलग, Hand work is हाथ का different. काम अलग, Head work is सर का different. काम अलग. But head is the head. लेकिन सर है. Everything come on. हर एक चीज सर ही कमांड करता है. Head is the one who command you to go to church. सर आज्ञा देता है कि पैरों से जाओ और चर्च पहुंचो. Then your leg walk. तो पैर चलने लगता Head है. is the one who command you to move his hand. सर आज्ञा देता है कि हाथ उठाओ ये चीज पकड़ लो. So without the head, जब तक सर आज्ञा न दे this hand, ये हाथ, this leg ये पैर cannot do nothing. नहीं कुछ कर सकते. So the same thing. इसी तरीके से God is Almighty. God is the head. महान परमेश्वर सर है. They are one body, ये है तो तीनों एक शरीर, but their personality are पर different. तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है. When the God the Father, जब पिता the परमेश्वर creator of the universe, जो ब्रह्मांड को the बनाने वाला है, Alpha, the जो Omega, शुरुआत और अंत है, who is the Yahweh, जो याहवे the परमेश्वर I am, the I जो am. कहता है मैं हूँ जो मैं हूँ, That God, वो परमेश्वर He left His throne, उसने अपनी राजगद्दी को सिंहासन become पर a छोड़ा, son, बेटे बने and He come to this earth, और इस दुनिया में आए and He saved our life. और हमारे जीवन को बचा He लिया. come in 33 years. He lived on this और earth. 33.5 साल तक वो दुनिया में रहते हैं देह में. He took our curse, हमारे श्राप को लेते our हैं, bondage, हमारे बंधनों को लेते the हैं. purpose that He come जिस मकसद से वो आए to save our life. हमारे जीवन को बचाने के लिए, What purpose that He come? किस मकसद के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए. So God was come for only for us परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आए to save your life. ताकि हमारे जीवन को बचाए. Monkey, elephant, lion cannot do that. कोई शेर, हाथी, बंदर नहीं कर सकता ये. That is when Jesus, God Himself, become as Jesus Christ, become as Son, and then now His work completely different. The Father work completely different. He Himself
becomes son and son work. He personality become a different and work for us. He come and die for on the cross and he rise again. Now where is Jesus? तो अब पास्टर कह रही है कि परमेश्वर पिता खुद हमारे पापों की वजह से, हमारे परेशानी की वजह से खुद बेटे बनके, यीशु मसीह बनके देह में, शरीर में जन्म लेते हैं, इस दुनिया में 3.5 साल तक जीवन जीते हैं। उसके बाद उनको मार दिया जाता है, किसी दिन वो जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाने के बाद वो इस दुनिया में मतलब आत्मा में रहते हैं, उसके बाद वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो पास्टर पूछे अब परमेश्वर कहाँ है? Where is God now? अब परमेश्वर कहाँ है? वैसे पास्टर जी हमारी आत्मा के अंदर है, हमारे अंदर है। But according to the Bible, where is Jesus? बाइबल के अनुसार यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। अभी हम लोग अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हाँ, Holy Spirit है। Where is Jesus? पवित्र आत्मा स्वर्ग में। हाँ, पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर है। जीसस कहाँ है? The Bible says Jesus is sitting in the right hands of the बाइबल Father. बताती है यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए। Now he is sitting in the hands of the वो Father. परमेश्वर के साथ बैठे हुए सिंहासन पर। And he also Bible says he is intercede for us. वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थनाएं कर रहे He is intercede for behalf of you and us. हैं। आपके लिए, मेरे लिए वो बैठ के वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। And then now after the Holy Spirit period finish, और जब after the finish of the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का पीरियड खत्म हो जाएगा, So now when Jesus, I have already said on the Friday in the meeting, Zones of the 14 verse 26, Jesus said, I will go and I will send the helper. तो पास्टर ने पहले बताया यूहन्ना 14:26 में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास और जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे सहायक भेजूंगा। So Jesus said before he left on this earth, तो जब उन्होंने धरती को छोड़ा उससे पहले I will not leave you alone. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के I will जाऊंगा, not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं बना के जा So रहा। now I am going to my अब Father. मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, I will send the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा भेजूंगा As he comes, और जब पवित्र आत्मा आएगा he will stay forever वो हमेशा रहेगा until Christ returns. जब तक यीशु मसीह He वापस will आएगा। never go again. वो दोबारा कभी नहीं जाएगा। And he will come. अब वो आएगा He will make you to remember who Jesus is. और वो आपको स्मरण दिलाएगा जो यीशु ने कहा What is है। the teaching of the Bible? यीशु मसीह बाइबल में क्या कहते हैं? He will convict वो you, आपको कन्विक्ट करेंगे, or he will anoint you, वो आपको अभिषेक he देगा, will counseling वो you, आपको सलाह he देगा, will teach you, वो आपको he will सिखाएगा, guide you, अब आपको गाइड करेगा he will bless you, और आपको आशीष and he will dwell in और you आपके अंदर रहेगा forever and ever. हमेशा के लिए। Jesus said, I come for few years. यीशु मसीह कहते हैं मैं कुछ सालों के लिए आया I will not be forever और here. मैं हमेशा यहाँ नहीं But when the Holy Spirit लेकिन comes, जब पवित्र आत्मा आएगा he will stay वो forever. हमेशा के लिए रहेगा। So now Holy Spirit तो पवित्र आत्मा to stay forever, हमारे साथ Holy रहने के लिए, Spirit to come पवित्र आत्मा आने के लिए in your life. आपके जीवन में As soon as you believe in Jesus Christ जैसे ही आप यीशु मसीह विश्वास करते हो as the personal Savior, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, the day that you believe Jesus, जिस दिन आपने यीशु विश्वास किया, the day that you baptize, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, the Holy Spirit come upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया। But now in the world, लेकिन अब दुनिया में, the whole world, पूरी दुनिया में people जो लोग who are not believing जो Jesus यीशु Christ, विश्वास नहीं करते हैं, they didn't have Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। That is why when you talk about Bible, तो इसलिए जब बाइबल की बात when you करते talk हैं, about Jesus, जब यीशु की बात करते they हैं, cannot digest, वो हजम नहीं कर पाते, they cannot experience, वो अनुभव भी नहीं कर they पाते, cannot वो believe. विश्वास नहीं कर For पाते, them very hard, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है। because only the Holy Spirit make you easy. क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे लिए यीशु को मानना, विश्वास करना आसान Only करता the है। Holy Spirit convicts you that yes, Jesus is the Lord. कन्विक्ट करती है कि हाँ यीशु मसीह ही प्रभु है। That is why the person who believes in Jesus Christ, इसलिए जो व्यक्ति यीशु विश्वास करता on है, that time only Holy Spirit will come to तब you. पवित्र आत्मा आप पर आता As He come, है। जब पवित्र आत्मा He आता is है, not घूमना इधर उधर जाना नहीं. He come and dwell वो inside you. आता है और हमारे अंदर रहता है। He come and seal. वो हमें पर मोहर लगा देता है। But the Bible says the Holy Spirit to work. तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए So when He come, जब वो आता है, He come with the fruit of the Holy वो Spirit. अपने फलों को लेकर आता है, He come with the power. वो अपने सामर्थ्य को He लेकर come with आता है, fire. वो प्रभु की आग को लेकर आता He है, come with anointing. वो अभिषेक को लेकर आता है। That is why when the person is, people are not powerful. आप देखिए लोगों में कुछ सामर्थ्य अपना नहीं होता है। All the miracle, the business thing, or Uncle Lula, or me, we are not powerful. तो जितने भी पासवान हैं, जितने भी आपको चमत्कार करने वाले, चकाई करने वाले थे, उनमें अपना कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। Very in any man and woman of God on this earth, we are not powerful. जितने भी आप दुनिया में देखते हैं, बड़े-बड़े जो लोग चमत्कार करते हैं, छुटकारे करते हैं, हम अपनी कलीसिया में भी देखते हैं, तो चमत्कार करने का सामर्थ्य इंसानों में नहीं है। How we become powerful? कैसे सामर्थ्य आता है? Holy Spirit is a powerful. पवित्र आत्मा सामर्थ्य
देता है। Holy Spirit is, I'm repeating again, Holy Spirit is a powerful. पवित्र आत्मा ही सामर्थी है। No man. कोई आदमी That's नहीं। why don't believe in man. तो इसलिए इंसानों को विश्वास न So करें। when the person is filled with the power of जब the कोई Holy इंसान Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है, that power वो सामर्थ्य manifests वो दिखती है in the life of the people. लोगों के जीवन में। When you are filled with the Holy जब Spirit, आप पवित्र आत्मा से भरना चालू man करेंगे, is not powerful. कोई इंसान I सामर्थ्य am नहीं not है। powerful. वास्तव में But when the सामर्थ्य Holy नहीं। Spirit is लेकिन inside पवित्र me, आत्मा अंदर आता है, when he comes, जब वो आता है, he becomes powerful. सामर्थ्य दिखाता है, Manifests his power आता है अपनी सामर्थ्य through us. हमारे द्वारा। That's why you can cast out the demons, इसलिए आप you पूरी can आत्मा को heal चंगा the सकते हैं, people, लोगों को चंगा कर सकते you हैं, can raise the dead, लोगों को जिंदा कर you सकते can हैं, deliver the people, लोगों को छुटकारा दे you सकते believe in हैं। Jesus आप Christ. विश्वास करते हैं That is यीशु the में, work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा। So when the person becomes तो powerful कोई व्यक्ति जब सामर्थ्य बनता है, because of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की वजह God से। is a powerful. परमेश्वर सामर्थ्य है। So when you carry God, तो जब आप प्रभु को लेकर घूमते हो, then now you become a powerful. तो आपके सामर्थ्य आ Now जाता you है, become an extraordinary person. एक अद्भुत व्यक्ति बन जाते हो। That is why the work of the Holy Spirit. This is the work of the Holy इसलिए Spirit. पवित्र आत्मा का ये कार्य है। So when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He comes with a gift. वो वरदान लेकर आता है, He comes with the power. सामर्थ्य लेकर आता है। But that gift, लेकिन वो वरदान, I will make you understand, okay? How you need to operate that gift. उस वरदान में कार्य कैसे करना है, How you need to receive that power. कैसे उस सामर्थ्य को पाना है। The day that you believe Jesus जिस दिन Christ, आपने यीशु विश्वास किया Jesus is my Lord, कि यीशु मसीह Jesus मेरा is प्रभु my है, King, वो मेरा राजा Jesus है, is my वो Savior, मेरा उद्धार करता that है। day Holy Spirit जिस comes. दिन पवित्र आत्मा आप पर आता है, The Holy Spirit just like a gift. You know when the somebody got a gift. जब कोई आपको तोहफा देता है, पवित्र आत्मा एक तोहफे के समान है। So now you believe Jesus. आपने यीशु विश्वास So किया, now Jesus is giving a gift. अब Holy यीशु Spirit. मसीह आपको एक तोहफा दे रहा है पवित्र आत्मा का। Box करके पैक करके देते हैं. So he come with a gift box. तो यीशु मसीह ने ऐसी पवित्र आत्मा एक बॉक्स के अंदर आपको दे दिया। So now when you receive a gift, what do you do? जब आप गिफ्ट पाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट करते तो क्या करते हैं? अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलते पास गिफ्ट लेके घर में नहीं डालता ना. गिफ्ट लेके घूमते नहीं और क्या था दिन बाय दिन, डे बाय डे, वीक बाय वीक हम ऐसे नहीं डालता. एक्साइटमेंट, खुशी होती खोल जो के। एक्साइटेड क्या है अंदर है? अरे चलो चलो खोल के देखें, What is inside? अंदर क्या है डब्बे के? कभी कभी मेरे को गिफ्ट देते तो हम लोग पासा कहाँ क्या है अंदर? आप खुला करो खुला करो. है ना? So now we want to see what is that inside खोला. ये गिफ्ट खोलने की हर किसी को उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। Same thing the Holy इसी Spirit. तरीके से पवित्र आत्मा, When you believe Jesus जब Christ, आपने यीशु विश्वास कर लिया, Holy Spirit come like a gift. पवित्र आत्मा एक गिफ्ट की तरह आती है। But you need to open the Holy तो Spirit. वो गिफ्ट भी आपको खोलना पड़ता है, पवित्र आत्मा को भी खोलना पड़ेगा। Without opening the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा खोले He cannot walk. वो कार्य नहीं करता। प्रभु तो आप विश्वास करते हैं, प्रभु ने गिफ्ट आपको दिया Holy Spirit, ठीक है? वो गिफ्ट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो Holy Spirit काम नहीं करेंगे. आप just like you are carnal Christian, you are no power, you have no revival, you have no conviction, you are not your life are not improvement, your life are just like just a Christian. कि मतलब अगर पवित्र आत्मा का तोहफा मिल जाता है, लेकिन अगर वो डिब्बा पवित्र आत्मा से खुला नहीं है, तो पवित्र आत्मा तो आपके पास है, आप मसीह तो बन गए, लेकिन एक तरह देहधारी मसीह में दिमाग के देह के मसीह हैं, टैग लाए घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से ना सामर्थ्य है, ना ही कोई बुद्धि है, ना ही आपकी ग्रोथ हो रही है, पर आप रुके हुए मसीह हो जाते हैं। So now you just like a namesake Christian. पर हाँ, नाम के मसीह तो है। There is today many people baptized, many people believe Jesus Christ. They have the Holy Spirit, but still the gift is not the इसलिए Holy. आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, प्रभु में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा They have no power सामर्थ्य नहीं है, because the gift that God has given. क्योंकि प्रभु ने जो वरदान दिया है, Still they are keeping somewhere वो कहीं रख के बैठे हैं, under the almirah अलमीरा के लॉकर में छुपा के रखा है। or under the kapra kabo under. So now you didn't open the gift. तो अगर आपने तोहफे को खोला ही नहीं, That is why today many people who is Christian very difficult to find तो out. इसलिए आजकल की दुनिया में सच्चा मसीह कौन है उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। Compromise. They are living the compromised life. बहुत सारे मसीह व्यक्ति तो बस समझौता करके बैठे कि हाँ ठीक है, मसीह बन गए बहुत है। So now that is how the Holy Spirit works. तो पवित्र आत्मा का So कार्य when है। God give you a gift, जब परमेश्वर आपको तोहफा देते हैं, you need to open the gift. आपको उस तोहफे को खोलना जरूरी है। Without opening, बिना तोहफे खोले Holy Spirit cannot work. पवित्र आत्मा कार्य नहीं And करता। your life will never change. आपका जीवन कोई बदलता Your नहीं life है। will never see the transformation. आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। So when you believe Jesus, जब आपने यीशु विश्वास now कर you लिया,
How? कैसे? Now, अब you need to open the gift, pray, प्रार्थना करना है, obey God, प्रभु की वचनों पर चलना obey है, the commandment of प्रभु की God, आज्ञाओं पर चलना है, and try to, repent, पश्चाताप करना है, not to go back the lifestyle that you जैसा have. पुराना जीवन था वैसे जीवन में नहीं जाना है, And now you started cleaning yourself. और अपने आप को सफाई करना शुरू करना Now है, you started trying to live a holy life, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करनी है, righteous life, धर्मी जीवन, and good life. एक अच्छा जीवन। Now you open the box. अब आप उस डब्बे को इस प्रकार से खोलते हैं, So when you open the box, तो जब आप डब्बा खोलते हैं, now the peace will come. तब शांति आता है, Now the joy will come. आनंद आता है, Now you know that your prayer are answered. आप बोलते हैं हाँ मेरी प्रार्थना को उत्तर भी आता Now है, you can able to hear the voice of Jesus. आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो, And now you could able to see what is light and what is darkness. आपको अंधेरे और ज्योति में फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, So when you open the box, तो जब डब्बा खोलते you हो, can see the light. आप ज्योति देख पाते हैं, Unless you didn't open the जब box, तक आप डब्बे को ना खोले, you can't able to see the light. आप रोशनी को नहीं देख You are पाएंगे, still living in आप darkness. अंधकार में ही जीते रहेंगे। That is why today many people become Christian, but their life never changes. इससे बहुत से लोग मसीह तो बन जाते हैं, उनका जीवन फिर भी क्यों नहीं बदलता? And demons are still और working. शैतान आराम से काम करता रहता है। Or they live the way they before, just like that. पर पहले बपतिस्मा लेने से पहले जैसा जीवन था, उसके बाद भी वैसा ही जीवन है। Any celebration come, कोई भी त्योहार होता है, any festival come, फेस्टिवल आता है, they will fall. आराम से गिर जाते They हैं। have no फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग का conviction नहीं होता, और वो लोग का खाएंगे भी नॉर्मल होता है, टेम्पल जाएंगे भी नॉर्मल होता है, और क्या था मंदिर का शाम आएंगे भी नॉर्मल होता है, और सारे दुनिया का साथ में संगति कभी भी नॉर्मल होता है। उनका लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिखाया, उनका मतलब है उनका पास होली स्पिरिट है, लेकिन दवा को they are not opening. पर अभी देखो पवित्र आत्मा ने कार्य शुरू नहीं हुआ है, So we need to open. तो हमें उसे खोलने की जरूरत है। God has given. परमेश्वर ने दिया है। Jesus said, I have given the Holy Spirit. परमेश्वर कहते हैं मैं तो पवित्र आत्मा देता हूँ, He will teach you. वो तुम्हें He सिखाएगा, will guide you. तुम्हें गाइड He will करेगा, counseling you. तुम्हें सलाह He देगा, come with wisdom. बुद्धि के He साथ आता come है, with knowledge. वो समझ He के come आता with है, power. सामर्थ्य He come के with साथ, fire. फायर के He साथ come आता with है, miracle. चमत्कार He के come साथ with आता है, signs and wonders. और चिन्ह और चमत्कार के साथ आता All है। the 9 gift, not the fruit, okay? 9 gift of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के 9 फल, Holy Spirit is the one who giving the prophecy. पवित्र आत्मा ही है जो भविष्यवाणी भी They करता come है, with the gift. वो वरदान के साथ आता है, They come with the fruit. वो फलों के साथ आता So है। when the Holy Spirit come जब upon, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, now you started prophesying. आप भविष्यवाणी करने Now लगते you हो, started see dream. आप सपने देखने लग जाते हो, Now you started counseling. आप सलाह देने लग Now जाते you हो, started cast out the demons. आप शैतान को बाहर निकालने लग Now जाते you हो, started speaking in tongue. आप अन्य भाषा बोलने Now लगते you हो, started evangelize the people. आप लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर देते हो। That is all. These are the work of the Holy ये Spirit. सब का सब पवित्र आत्मा कार्य है। So now we need to open the gift. तो हमें उन तबों को खोलना होगा। So unless without the Holy Spirit, तो जब तक पवित्र आत्मा न हो, your Christian life is dead. आपका मसीही जीवन एक मरा हुआ जीवन है। So that is why we need to have the friendship of the Holy तो Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा में मित्रता बहुत Holy जरूरी है। Spirit is the one who pushes you पवित्र आत्मा ये जो आपको धक्का मारता है to read Bible, कि बाइबल पढ़ लो, to go to church, चर्च चले जाओ, to pray, प्रार्थना करो, to fast. उपवास करो। So when you come with the wind, जब वो आता है, you can't able to control yourself. तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर You पाते। need to surrender. आप कहते ठीक है ये आ रहा है, Yes, I मैं need to नहीं fasting. मुझे उपवास तो करना So पड़ेगा। now you want to take fasting hunger. That is who? Holy Spirit is the one who puts तो inside पवित्र you. आत्मा ये जो आपको अंदर से बोल रहा है, उसके बाद मानते हो तभी तो भूखे रह पाते हो। Fast. उपवास करो। You know that something is going to happen. तो कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, तो पहले उपवास कर लो। Or you want to break through in your life. या आपके जीवन में विकास देखना चाहता है, There is a Holy Spirit work is there who pushes you to fast. तो पवित्र आत्मा ये है जो आपको बोलता है कि उपवास करो। But without Holy Spirit, पर बिना पवित्र आत्मा you के can't able to fast. आप उपवास कर ही नहीं सकते। In this week, इस हफ्ते में you know, so many years back I used to fast many a time. पास्टर के पहले के सालों में मैं बहुत ज्यादा उपवास करती थी, But when I started ministry, पर पास्टर के मैं सेविका शुरू करी, very difficult to fast. उपवास करना बहुत मुश्किल है। Then I was whenever I listened the message, जब भी पास्टर के कोई सुसमाचार का मैसेज, all the messages talk about fasting. सारे के सारे उपवास के बारे में होते थे। Then God, I was thinking, God, do you really want me to fast? तो पास्टर जी परमेश्वर आप चाहते हो मैं उपवास में चली जाऊं? So everything that I said, get out, then fasting ka pari mein. So because long time I didn't fast myself. बहुत समय से पास्टर ने उपवास किया ही नहीं। साथ के लिए तो फास्टिंग करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली कन्विक्ट करके फास्टिंग करने में बहुत टाइम हो गया. Then I used to tell these people, so I'm very difficult to fast. तो पास्टर बताती भी थी कि पास्टर को उपवास करने में कठिनाई होती है। Friday चर्च का फास्टिंग मैं लेती हूँ, लेकिन अपना साइड करके नहीं लेता. बहुत मुश्किल होता था, 2 साल हो गया.
So now this week, so much force is coming to me. तो पास करिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पास के ऊपर दबाव आ रहा है एक तरीके से। Then I say, Holy Spirit, you want me to fast? तो पास करिए पवित्र आत्मा क्या आप चाहते हो? If you want me to fast, अगर चाहते हो, give me the strength. मुझे सामर्थ दो। So that I will not I don't want to have tea. तो पास करिए मुझे सामर्थ दो कि मैं चाय ना पीऊँ। Or I don't want to have hungry before, unless the fasting finished. जब तक उपवास खत्म ना हो मुझे भूख ना लगे। Then I decided last Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I will take fast. तो पास परमेश्वर ने सोचा कि मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार उपवास करूँगी। So I surrendered to Holy Spirit. तो परमेश्वर को समर्पण कर दिया। You push me so much. आप मुझे तो धक्का मार रहे Everywhere I listen, fasting. ठीक है, मैं surrender करती हूँ, मैं fasting ले रहा हूँ. So when I fast, तो पास ने उपवास किया। I forgot tea. पास को चाहिए। I forgot all the things. सारी चीजें याद And I है। could able to enjoy the fasting 3 days. तो पास ने 3 दिन अच्छे से उपवास Then I किया। was praying पास ने प्रार्थना कर रही थी for you all, आप सबके for the लिए, church, चर्च के लिए। and I need some money. पास के मुझे पैसे की जरूरत थी। I asked God, पास ने परमेश्वर से Lord, कहा I need this much money. प्रभु इतना पैसा चाहिए, I really need it. मुझे बहुत जरूरी है। I don't want the church. I don't want to take. I need it my own money. मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे चर्च का पैसा नहीं चाहिए। You are my God. आप मेरे परमेश्वर You हैं, must give it. आपको देना I होगा। don't know where it will come. मुझे नहीं पता कहाँ So से in आए। this fasting, तो इस उपवास I was praying for so many other things, पास के लिए बहुत चीजों के लिए प्रार्थना and I की asked for money और also. पैसों के लिए भी करी। Then when I finished the जब fasting, उपवास खत्म हुआ I never know that somebody is sending money. तो पास के लिए मुझे पता ही नहीं किसने मुझे पैसा भेजा। So on Thursday, थर्सडे को I wake up. पास से सुबह उठी When I check it, then a message, thank आया. तो मैं कौन है? तो देख रहा था तो बस कमाई. I have sent you for 10,000 for you. तो किसी व्यक्ति ने बोला पास से कमाए, वो 10,000 में आपके लिए भेजता हूँ। Wow. वो एक इंसान कहाँ से मालूम गया? वो इंसान one New Zealand से. So how you come to know that I need that? तो पास के लिए उसे कैसे पता चला कि मुझे दिल्ली में जरूरत है? Then I say, Lord, you answer my prayer. पास कह रहे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया। ताकि अभी तो fasting का अभी भी खत्म हो रहा है. So that is how God works. तो परमेश्वर कार्य ऐसा है। Then I received yesterday पास के मुझे कल मिले पैसे because it is international. क्योंकि इंटरनेशनल So, 2 दिन लगते process हैं of that. आने में। So now then I was thinking, Pastor, how you know that I need money? तो पास कह रही मैंने उन पास्टर से पूछा आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसा चाहिए? I really need that. I was asking, मुझे सच में जरूरत थी और मैं परमेश्वर and I said, thank you so much, God speak to और you. परमेश्वर को भी धन्यवाद कि प्रभु ने आपसे बात करी। So that is how God works. तो परमेश्वर कार्य When I है। speak to God, जब आप प्रभु से बात करते हैं, then I know that God has answered my तो prayer. प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया। So that is the things that, and because something that I needed, so God want me to fast. तो परमेश्वर चाह रहे थे कि कुछ जरूरत है तो उसके लिए उपवास करो। Not all about money, okay? सिर्फ पैसे ही So नहीं many है, other things also I was praying. बहुत सारी चीजों के पास से प्रार्थना Even in करें। the church. चर्च में भी। And after I fast, I can feel peace in this room. तो पास गए जब से मैंने उपवास किया मुझे इस कमरे में शांति महसूस I होती can है। feel the presence of God. प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। And that is how sometimes we feel, sometimes, so many things happen, so many things. And sometimes we think that church is not growing, these things are not growing, but everything happens for the reason. तो हम जब सोचते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, चर्च में क्यों ऐसे लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन हर एक चीज का एक मकसद होता है। There is a reason for हर एक everything. चीज के कारण है। Now God is putting you here like this. अब प्रभु ने आप लोगों को यहाँ रखा है। It is not about the crowded. ऐसा नहीं कि बाकी लोग क्यों नहीं But है। in this time God wants to refine you. हो सकता है प्रभु आपको ही, आप लोगों को ही तपाकर और बढ़ाना चाहता है। And maybe God is the one who wants to mold in people. प्रभु आप लोगों को ही बढ़ाना चाह रहा So हो that the days to come, ताकि आने वाले you दिनों में can mold the others. आप बाकियों को और अच्छा बना पाए। It is not that our church is not growing and because of, no. Church how will grow? चर्च कैसे बढ़ता है? This church will never grow. ऐसा नहीं कि चर्च नहीं बढ़ेगा। हमारा चर्च grow करके वाह ऐसा नहीं होता। अपना we need to grow. हमें बढ़ना है चर्च। You need to grow. आपको बढ़ना है। The we say church grow नहीं करता, कम लोग हैं। कौन है चर्च तो बिल्डिंग तो grow नहीं करेंगे। इधर आया ट्री जैसा बड़ा घर है, और हम लोग का चर्च grow करे। No, God wanted to grow. परमेश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। So God wants us sometimes he say we are praying for God, people to come and कई बार हम grow. लोग भी प्रार्थना करते हैं कि लोग आए चर्च में। But God is saying you grow. परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम ग्रो करो। God grow. प्रभु में विश्वास करो, प्रभु में विश्वास बढ़ाओ। People bro, you should know God. आपको प्रभु पता होना चाहिए। When you grow, जब आप पढ़ते हैं, you can make other person. आप दूसरों को भी ग्रो करवा सकते हैं। When you bless, जब आप आशीषित होते you हैं, can bless आप others. दूसरों को आशीष दे सकते When हैं। you anointed, जब आप अभिषेक पाते हैं, you can anoint आप others. दूसरों को अभिषेक दे सकते हैं। And when you become a deep Christian life, जब आपका एक मसीह जीवन गहरा हो जाता you है, can make the other person a आप deep दूसरों Christian को भी life. गहरा रिश्ता दे सकते हैं। That is how God works. ये परमेश्वर कार्य है। So that now
Holy जब तक Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा की मित्रता नहीं है, And you have to give. परमेश्वर का आपके वरदान नहीं है, But if you didn't open, पर आपने उस वरदान को खोला ही नहीं, you didn't allow the Holy Spirit to walk. आपने पवित्र आत्मा को कार्य करने का मौका ही नहीं So when you दिया, receive it, तो जब आप उसे पा लेंगे, now you need the Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा जब पाते Holy हैं, Spirit. पवित्र आत्मा You have come into my life. आप मेरे जीवन में आए, Walk in my life. कार्य करें। If you are not allowed like that, अगर आपने पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं बुलाया, गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन अब अंदर है गिफ्ट ना बैग को अभी तक खोला नहीं है, खोला कर लो। So how we need to खोला? You need to say the Holy Spirit, now I open you and walk in my life. For whatever you want to do, I surrender to you. तो अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में खुल के कार्य करे, तो आपको प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा में समर्पण करता हूँ, आप मेरे जीवन में कार्य करें। And you just any situation you tell the Holy Spirit. कोई भी परिस्थितियों पवित्र आत्मा से बोले। If you don't know how to pray, आपको प्रार्थना नहीं करना आता, Holy Spirit is inside. पवित्र आत्मा आपके अंदर है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा से बोले teach me कि मुझे सिखाएं how to pray मैं प्रार्थना कैसे करूं, according to the will of God. आपकी इच्छा से। Holy Spirit, परमेश्वर teach me पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं how to read कैसे Bible. बाइबल पढ़ना है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach me मुझे सिखाएं how to worship. कैसे आराधना करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach me. मुझे सिखाएं I want to know कि Jesus. मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। Holy Spirit is the one who teach you how to know Jesus. पवित्र आत्मा ये है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप यीशु को जानेंगे। See, only the Holy Spirit cannot do His own. पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। Friday I already said, पास्टर शुक्रवार को कहा, Jesus Christ come. यीशु मसीह दुनिया में आए, He didn't do His will. वो अपनी इच्छा पर नहीं चला, He do the will of the अपने Father. पिता की इच्छा पर चला। That's why Jesus said, I am doing the will of my Father. इसलिए पर यीशु मसीह ने कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी कर रहा हूँ, I cannot do my own मैं will. अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। I and my Father one. मैं और मेरा पिता एक है। So now the Holy Spirit come. तो पवित्र आत्मा आता है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा He can't do anything. वो कुछ नहीं कर सकता, He need to do the will of Jesus वो Christ. यीशु की मर्जी ही पूरी करता है। So that is why in the name of Jesus Christ, इसलिए यीशु के नाम में then the Holy Spirit walk. पवित्र आत्मा कार्य करता है। We say in the name of Jesus Christ, come out. हम कहते हैं यीशु के नाम में निकल जा। Everyone say in the name of Jesus Christ. आप बोलिए यीशु के नाम में All my problem come मेरी out. सारी परेशानी बाहर निकल जाए, All my tension come मेरी सारी out. टेंशन बाहर निकल All जाए, my sorrow come मेरी out. सारी दुख All my sickness come मेरी out. सारी बीमारी बाहर All my निकल जाए, frustration मेरी come सारी out. फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल All जाए, my worry come मेरी out. हर चिंता बाहर निकल In जाए, Jesus' यीशु के नाम name. में। So when you do that, तो जब ये बोलते हैं now in the name of Jesus यीशु के Christ, नाम में Holy Spirit walk in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। Without the name of Jesus बिना Christ, यीशु मसीह के नाम के Holy Spirit, I say that's gift bag and you are closed. तो पवित्र आत्मा के डब्बे के समान है जो तोहफा मिला है पर वो बंद पड़ा है। But when now with the Holy Spirit, how you work in the name of Jesus लेकिन Christ. तू कब कार्य करता है? यीशु के नाम से कार्य करता So now, if you want to see that Holy Spirit is the one who casts out the demon है। in तो the पवित्र name आत्मा of ही Jesus. है जो यीशु के नाम से पूरी आत्मा को बाहर निकालता है। Holy Spirit is the one who is in the name of Jesus to believe Jesus is God. तो तो पवित्र आत्मा ही है जो यीशु के नाम में कार्य करता है, Holy Spirit is the one who bless your life जो आपके जीवन को आशीष देता है in the name of Jesus, यीशु के नाम में, not in any other और name. किसी नाम में नहीं। So you can't pray, you can't ask the Holy Spirit name, you can't ask Holy Spirit, but you can be a friend with the Holy Spirit and surrendering to Holy Spirit in the name of Jesus. तो आप सिर्फ पवित्र आत्मा के नाम से कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन पवित्र आत्मा को समर्पण करके यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से कुछ भी मांग सकते। So without the Holy तो Spirit, बिना पवित्र आत्मा के you will never have joy, आपके पास आनंद नहीं होगा, you will never have peace, शांति नहीं होगी, you will never have power, सामर्थ नहीं you होगा, will never have anointing, अभिषेक नहीं होगा, you will never have growth, और कोई ग्रोथ नहीं you होगी। will never know who Jesus is. आप यीशु को भी नहीं जान पाएंगे, Because only the Holy Spirit क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा ही need to reveal who Jesus is, वो ही दिखा सकता है कि यीशु who कौन है, is God. कि परमेश्वर कौन है। That is why people who didn't believe Jesus इसलिए वो Christ, लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। when you talk about Jesus आप उन्हें Christ, यीशु के बारे में जब बताते हैं, they can't able to वो नहीं understand समझ पाते, because they didn't have the Holy Spirit पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है, and they cannot able to understand your mind, your emotion, your feeling about God. वो आपके समझ, आपके मन क्या है परमेश्वर के बारे में आप वो लोग भी नहीं समझ पाते। But the day that they believe, पर जिस दिन वो विश्वास करते हैं, they come to recognize who is Jesus. वो जान पाते हैं कि यीशु See, we recognize who is Jesus, हमें पता लगा है यीशु कौन है, who is God. कि परमेश्वर कौन है। That is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा कार्य है। So that Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा you need to know आपको जानना होगा, and you need to fellowship. आपको संगति करनी होगी। Always say, Holy Spirit is always with you. पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ Bible says He is always with us. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। Jesus said He will stay you
forever and ever. यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ That is why रहेगा। wherever you go, इतने जहाँ पर भी वो गए, you go with the Holy Spirit. वो कहे पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ जाएगा। You also practice. आप भी कोशिश करें। I am practice. पास से कहने मैंने कोशिश करी। I just say, Holy Spirit, let us sleep. तो पास से घर से निकलते पास You are sleeping with me. That's what I mean. पवित्र आत्मा चलो घर से बाहर चले। Let us go to church. चले। Let us preach. चलो प्रचार करें। Inside my heart, I always talk. तो पास इंसान की जैसे बात करती है। Then he talk to us. तो वो भी हमसे बात। See, you hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनते You हैं। hear the God's. You can see God. All these things are the Holy Spirit only doing. ये पवित्र आत्मा कार्य ही है कि आप परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। And you answer a prayer. और वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे पाते Holy हैं। Spirit is the one who lead your prayer to God. पवित्र आत्मा ये जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेकर जाता है And the answer comes और out. उत्तर आ जाता है। And Holy Spirit is the one who tell you to do and do this, do this, do. You should not do. You should do this thing. तो पवित्र आत्मा ये जो आपको अंदर से बोलता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो और ये मत करो। And when the Holy Spirit तो has, जब पवित्र आत्मा you will होता है have wisdom. तो फिर बुद्धि होती है। What is good? क्या अच्छा है? What is evil? क्या बुरा है? What is sin? क्या पाप है? What is holy? क्या पवित्रता What है? is righteous? क्या धर्मी है? What is not क्या righteous? अधर्म है? Only the Holy Spirit सिर्फ पवित्र आत्मा will ही give you the वो wisdom. बुद्धि देता है। That is why when the person who carry the Spirit of God, इसलिए वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है they can do extraordinary. वो अद्भुत कार्य कर पाता They है। know the mystery. वो मिस्ट्री जान पाता है। They know the beyond the people understanding. वो समझ पाता है कि लोग ये समझ के परे है। They know the person how. वो जानता है They know the वो person situation. लोगों की परिस्थितियों They को know जानता है। how is the devil वो is जानता है working कि in the शैतान के person's जीवन में life. कैसे कार्य कर रहा है। But if the person doesn't have Holy Spirit, लेकिन वो व्यक्ति के पवित्र आत्मा ना हो, there is like today many people इसलिए आज बहुत when they do miracle signs and चमत्कार wonders, करते हैं the कुछ कार्य, scientist people, तो जो वैज्ञानिक the लोग people हैं who didn't believe जो Jesus, यीशु विश्वास नहीं करते, they say this is psycho वो problem कहते हैं आपका दिमाग खराब हो गया है, and this is no miracle. ये कोई चमत्कार नहीं They होता are है, doing like this, doing like वो this. ऐसे कर दिया होगा वैसे कर दिया होगा। There's a last Friday I talked about, even in the news they saw that this is no miracle. They giving water and the person fine. All these things are just a logic. इसलिए न्यूज़ में भी इतना आ रहा है कि लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के पानी देते हैं, प्रार्थना के पानी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ ऐसे बेफालतू की I बातें think हैं। that because of that, Priti was saying yesterday night that Uncle Nula, he is certified that this is like that. I think he saw that news. So he was talking about this is the miracle. It is not miracle, then what is this? तो इसलिए जाकर देखिए मेरे ग्रुप में रात को एक शेयर करी थी वीडियो अंकुर नोला जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि वो पब्लिकली लोगों को एक मतलब बोलते हैं कि न्यूज़ वालों को कि देखो मेरी कलीसिया में ऐसे एक लेडी है और उसको कैसे बहुत साल तक उसको मिसकैरेज होता रहता है, 11 बार होता है और उसके बाद फाइनली जब अंकुर नोला जी ले हैंड प्रेयर करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, उसके बच्चा जो होता है वो जीवित रहता है। और वो कहते हैं मेरी कलीसिया में और भी बहुत सारी कलीसियाओं में इतने सारे चमत्कार होते हैं, इतनी सारी गवाहियां हैं, वो गवाहियां झूठी नहीं है। अगर आपको न्यूज़ वालों को डाउट है तो जाके उनको पर्सनली जाके पूछो, डरा के पूछो, धमका के पूछो, वो सच बताएंगे कि सच में ये चमत्कार होते हैं। So that is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा कार्य है। We also see here every हमने day, अपनी कलीसिया में खुद भी देखा है, every day. हर रोज Cast out demons, शैतान की शक्ति करती है। all the people who are Priti देखो, all the people देखो. When you have possessed Holy अब Spirit, आपके as Satan, अंदर शैतान होता है, you don't know what you are doing. आपको नहीं पता होता कि आपके क्या हो रहा है। अचानक से आपका mindset, आपका सारी चीज, everyone experience the devil. See when the devil come, जब शैतान आता है, you don't know what is inside of you. आपको पता नहीं लगता आपको पता नहीं कि आपका दिमाग को गाइड करते हैं, आपको दिमाग को पजल करते हैं, नो अचानक से तो आप मालूम नहीं है क्या स्क्रीमिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, तो वो जीवन को कास्ट आउट करते हैं, वो के बाद आप नॉर्मल आते हैं। So that is why the person who is praying, you know what I'm talking तो about. जिन लोगों ने अनुभव किया है वो जानते हैं कि क्या होता है शैतान का कार्य। And then I can see that the devil is inside, that they control their heart. तो पासिकल में देख सकते हो कि जो शैतान आपके अंदर होता है वो आपके दिल को पकड़ के बैठा होता है। Then now your normal heart, your normal mind, the normal mindset they control. तो अब ये नॉर्मल सोच है वो शैतान के हाथ में होती है। So now that devil is, then you don't know what to do. So now you screaming, and then sometimes they speak. और इसलिए देखिए शैतान तो बात भी करता है, चिल्लाता भी है। So then now they are speaking, and the person is speaking, not you. Devil is speaking. तो व्यक्ति बात नहीं कर रहा था, वो शैतान उसके द्वारा बात कर रहा होता है। He is the one. वो बात करता है And we say, go out. और पास्टर कहती बाहर निकल। Then when they went, वो जाता है। then now you know. आप देखिए वो शरीर नॉर्मल हो जाता है। So these are not a psycho problem. तो ये कोई बेवकूफ पागलों वाली बातें नहीं है। Satan is
real. शैतान सच्चा है, Miracle is real. चमत्कार भी सच्चा है, Jesus is real. यीशु भी सच्चा है, God is real. परमेश्वर भी सच्चा है, Holy Spirit is real. पवित्र आत्मा भी सच्चा है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा इंसान के It रूप is में no है, ghost. वो भूत नहीं है, वो He is a person. व्यक्ति है, He is walking just वो like आपके साथ I. कार्य करता है, He walk with you. वो आपके साथ He कार्य talk करता with है, you. वो आपसे बात He करता है, stay with you. वो आपके साथ He रहता है, eat with you. वो आपके साथ He रहता sleep है, with you. वो आपके सोता भी है। So when you would recognize, तो जब आप जान जाते हैं, when you make friendship, जब आप कुछ मित्रता कर लेते हैं, you will never fall into sin. आप पाप में नहीं गिरते। And when this thing comes, और जब ये चीजें होती है, when you obey, जब आप प्रभु की बात मानते हैं, see now when you have the Holy Spirit will move powerfully in your life. जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं, You need to obedience. तो आपको क्या जरूरी है कि प्रभु की बात Obedience को is माने। very very important. प्रभु की बात मानना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. Let us come to zone 16. खोलते हैं यूहन्ना 16, Zone 16, 30 to 15. Zone 16, 30 to 15. यूहन्ना 16, Yes. Zone 16, 13 to 15. The Bible says, when the Spirit of the truth come upon you, He will guide you all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hear, He will speak about Jesus. आइए हम खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 13 से 15, पेज नंबर 155, 155। Yes. Read, Kanu. यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 13 से 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Amen. See, so Jesus said, this is the Jesus before He go. तो जैसे यीशु मसीह गए उससे पहले Jesus said that He will come, यीशु मसीह कि वो आएगा, He will guide you, वो आपको गाइड He will करेगा, direct you, आपको सिखाएगा, and then also He will not speak His own वो authority. अपने अधिकार से बात नहीं करेगा, He will speak the authority of Jesus. वो यीशु के अधिकार से बात करेगा। That is why when He come, तो जब वो आएगा and when we use in the name of Jesus और Christ, यीशु के नाम में जब हम बोलते हैं, the Holy Spirit will move powerfully. पवित्र आत्मा महान रूप से कार्य करता And है। you need to obey. तो आपको बात माननी पड़ती The है। Holy Spirit perform all the functions of the personal being. You know, He will just like you and I. He will talk to you. तो पवित्र आत्मा एक आपके और मेरी तरह बिल्कुल बात करेगा आपसे, He will talk to you. वो आपसे बात करेगा। See, we say, God talk to me. हम बोलते परमेश्वर ने मुझसे बात करी, There is no God. There is the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी। That is why how the Bible says. तो बाइबल क्या बताती है? Turn to the Marks of the 13. Marks of the 13, 11. Marks of the 13, 11. मरकुस 13 का 11। What the Bible says, Marks of the 13, he talked to the, Philip. The Holy Spirit is the one who talked to the Philip. Yes, read. Okay, let us read Acts chapter 1, verse 16. That will be easy. प्रेरितों के काम 1 का 16। Acts chapter 1, verse 16. प्रेरितों के किताब 1 का 16। 165 पेज नंबर 165। पढ़ना। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। So now the Holy Spirit is the one who talked to them. तो पवित्र आत्मा ने जो उन लोगों से बात किया, So that means Holy Spirit just like you and I. तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे समान है। This is the personal being of the Holy Spirit I'm talking about. तो ये परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद का You व्यक्तित्व है। can make a friends with Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को मित्र बना सकते हैं। And then also you can read book of once again book of Acts chapter 8 verse 28. प्रेरितों की किताब 8 का 28। Yeah, Acts chapter 8 verse 28. Then also Acts chapter 10 verse 19. 8 का 28। Yeah, read. वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? See now the Philip was sitting. अब ये देखिए फिलिप वहां पर होता है, The Holy Spirit come and talk. पवित्र आत्मा को उसे बात करता है Go कि जा and speak to this और उस रथ person. के पीछे हो उस व्यक्ति से बात कर। See, this is the how I'm talking about the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य है, He is working. वो कार्य करता He है, is talking. वो बात करता So है। he was telling to the Philip. उन्होंने फिलिप्पुस से कहा, He was reading Bible. बाइबल पढ़ रहा था, And then he was sitting somewhere. तो जो एक
वहाँ पर वो खोजा था, वो व्यक्ति वहाँ पर बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह भविष्यद्वक्ता की एक अपनी रथ के अंदर बैठा पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा कि जाके उस रथ के पीछे हो ले और उस व्यक्ति से बात कर। That is how the Holy Spirit works. So sometimes Holy Spirit will tell you, ऐसे ही पवित्र आत्मा कई बार आपसे कहेगा, go and meet the person. अरे जाके उस व्यक्ति से बात कर, Go and pray for this जाके person. इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। In your house, आपके घर में Holy Spirit will tell you, पवित्र आत्मा आपसे pray for the कहेगा, pastor. पास्टर के लिए प्रार्थना Pray कर, for their उस family. परिवार के लिए प्रार्थना Pray करो, for your son. अपने बेटे के लिए Pray for प्रार्थना करो, pray for बेटी के लिए this. प्रार्थना करो। He know what is happening. क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि क्या हो रहा है, In that moment, और उस समय you need to pray. आपको प्रार्थना करना है। If you didn't obey, अगर आप बात नहीं मानेंगे, if something is happening, किसी को कुछ हो गया, then the Holy Spirit will tell तो you, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, I tell you, कहा था ना प्रार्थना करने के लिए, क्यों नहीं करी? so that person need to be saved. तो उस व्यक्ति को बचाना था। That person Satan may be planned to destroy. कहते शैतान योजना बना उस व्यक्ति को खत्म करने की। Now the Holy Spirit tell you to do अब something. पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है कि उस व्यक्ति के लिए करो। So through your prayer, आपकी प्रार्थनाओं के that द्वारा person may वो व्यक्ति say, बच you सकता है। don't know what that person is आपको नहीं पता going उसके through. जीवन में क्या चल रहा So है। whatever the Holy Spirit says, जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है, do it. आप करें। When you do it, जब करते हैं, He can function powerfully. पूर्ण तरह कार्य कर पाता है। But if you didn't do, पर अगर आप नहीं करते, now you're slowly disobedient. तो आप धीरे-धीरे अनाज्ञाकारी होते जा रहे हैं। Then the Bible says, don't grieve the Holy तो Spirit. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा को दुखित मत करो। Ephesians 4:13. इफिसियों 4:30 में। So the Bible says, don't grieve the Holy तो Spirit. बाइबल बताती है कि Holy Spirit will tell you pray. पवित्र आत्मा कहती है प्रार्थना करो, Holy Spirit will tell you go to church. कि चर्च जाओ, Holy Spirit will tell you give. कि जाओ दो। Holy Spirit will tell you sometimes Holy Spirit tells us to give some money to others. कई बार पवित्र आत्मा आपसे अंदर से बोलती है कि जाओ उसको इतना पैसा दे दो। See, when you are not doing all these things, तो जब ये चीजें नहीं करते हैं, हम भी क्या होते हैं? प्रभु हम लोग को बताता है, हम नहीं करते तो हम लोग ना गिल्टी फीलिंग होता है। आप लोग ऐसे है ना, ऐसे एक्सप्लेन करने नहीं करना। So now when you are not obeying the Holy तो Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते, nobody know. कोई भी नहीं जानता, Only you know. लेकिन आप जानते What हैं is the Holy कि Spirit आपकी बात telling नहीं you? मानते, And if you are not doing, और आपने नहीं किया, inside guilty, तो अंदर से बहुत हीन then भाव कभी आता कभी है। ना मैं आज ना ऐसा कर रहा था लेकिन मैं नहीं हो पाया, तो हमको दुखी होते हैं। Then if you disobedient, Holy Spirit is more दुखी. तो अगर आप दुखी हैं, तो पवित्र आत्मा कितनी दुखी है कि आपको काम नहीं किया। But when you obey, लेकिन अगर आप बात He मान will लेते हैं, more functioning you. वो आपको और He will more और powerful. सब ये भी कर, अच्छा But ये if कर, you disobedient, लेकिन अगर आप disobedient, हाँ एक बात नहीं मान रहे, दूसरी बात नहीं मान रहे, now तीसरी बात नहीं मान the रहे, devil will come and capture तब you. शैतान बोलेगा अब तो बात ही नहीं Now मानता Holy ये रहा Spirit है। is not go लेकिन away. पवित्र आत्मा जाना तो नहीं है, Now He is unable to function. लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे कि आप उसकी बात नहीं मानते। चुप करके बैठा और हम लोग का लाइफ में पाप बढ़ते रहते तो बढ़ते रहते तो वो पाप से हम लोग को मरते हैं। बाइबल बताता है ना, the wages of sin is death. बाइबल लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। Even though you are a Christian, आप मसीह व्यक्ति तो बन गए, even though you are baptized, बपतिस्मा भी, even though you are believer, विश्वासी भी बन but गए, if you didn't obey the Holy लेकिन अगर Spirit, पवित्र आत्मा की आज्ञा पर आज भी नहीं चल रही you है, obey the devil, आप शैतान की बातों को मान रहे हैं, then you are continue sinning, तो एक पाप फिर दूसरा पाप फिर तीसरा पाप फिर चौथा पाप, then that sin will kill you. और वो पाप आपको क्या करेगा? मृत्यु करवाएगा आत्मिक रूप से। That is why, but when you are allowed the Holy Spirit, लेकिन जब एक बात मानते, दूसरी बात मानते, तीसरी बात मानते, चौथी बात मानते हैं, then you become तो powerful. सामर्थ्य Your prayer become powerful. प्रेयर में Your preaching become प्रचार में powerful. सामर्थ्य आता Your है, worship become आपकी powerful. आराधना में सामर्थ्य आता है, You Christian become मसीह powerful. जीवन आसान Whatever you are doing, आप जो कुछ में हाथ डालेंगे, there is a miracle, signs विकास हो जाता wonder, है, चिन्ह दिखते हैं, prayer happening, प्रार्थना जो करते हैं वो हो जाता है, so many things happening. बहुत चीजें होती हैं, Because when you obey, क्योंकि जब आप बात मानते हैं, He completely तो functions. कहता है तो ये मेरा है, मैं इसे पूरी तरह कार्य कर सकता हूँ। Now whatever you तो declare, आप जो भी बोलेंगे, things happening. चीजें हो जाएंगी। So then we say, wow, this person has become अरे इस powerful. व्यक्ति में सामर्थ्य आ गया, जो बोल रहा हो रहा है, He is not तो powerful. व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है, God is powerful. पवित्र आत्मा को कार्य करने दे रहा है। So today many people, many evangelists, many pastors, how they become तो आज powerful? बहुत सारे इवेंजलिस्ट हैं, पासवान हैं, वो कैसे इतने सामर्थ्य They हुए? obey the voice of the Holy क्योंकि पवित्र Spirit. आत्मा जो बोलती है वो करते हैं, बोलती है वो करते हैं। They are you and I same, हम भी और आप भी ऐसे ही but हैं, they obey. पर वो बात मानते हैं, They वो मानते listen. हैं, वो सुनते हैं, हम नहीं If you सुनते do हैं। that, अगर हम भी सुनना शुरू कर दें, you can do great things. आप महान कार्य। That's what the Bible Jesus said. तो बाइबल The कहती है Holy Spirit will come upon you. कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, You will do greater than I. तो यीशु मसीह कहते तुम मुझसे बड़े काम करोगे। Bible says Jesus said, यीशु ने कहा when Jesus Christ, when the Holy Spirit come upon पवित्र you, आत्मा तुम पर आएगा, you will do greater than I. जो मैंने किया ना 3.5 साल में, तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। There is today many people do so many great इसलिए आज things. हम देखते हैं यीशु मसीह के जितने चमत्कार थे, उससे कई बड़े बड़े चमत्कार आज भी लोग कर रहे हैं। So many things that they are doing. वो रोजमर्रा में चमत्कार कर रहे हैं।
Why? कैसे कर रहे हैं? This is the power of the Holy क्योंकि Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ चल रहा है उन पर। But when the person disobedient started, लेकिन एक व्यक्ति बात नहीं मानता एक when बार, the person committing sin, और धीरे-धीरे पाप बढ़ता जाता है, then you see slowly you become और backslide. धीरे-धीरे फिर आप बैकस्लाइड हो जाते हो। In the beginning, see, sin is like that. Okay? आप देखिए शुरुआत में पाप ऐसा ही है। You are growing in the Lord. जब प्रभु में बढ़ते हो, You obey आप God. बात मान रहे हो, Going church, चर्च भी जा रहे हो, giving टाइम भी दे रहे हो, prayer, विश्वास भी कर रहे हो, loving प्रार्थना people, कर रहे हो, लोगों से प्रेम कर रहे हो, forgiving. लोगों को माफ कर These रहे हो। are the work of the Holy Spirit. मतलब पवित्र आत्मा पे काम When you कर रहा है। obey these things, आप ये कर रहे हो, forgive people, लोगों को माफ कर रहे the हो, Holy Spirit working, पवित्र आत्मा अच्छे से कार्य कर Where रहा in है, you? आपके अंदर रह रहा है। and now you started disobedient. अब धीरे-धीरे बात माननी बंद कर दी। Then now once, for example, you are, God say don't lie, अब प्रभु ने बोला झूठ मत बोलना। you lie. The first day, पहले दिन तो घबराओ जाएंगे. अरे क्या कर दिया, अच्छा से झूठ बोल मैंने दिया। पाप कर दिया. लेकिन second day, फिर दूसरे दिन करोगे दोबारा, Third day, थर्ड डे हो जाएगा, fourth day, चौथा दिन आ जाएगा, Fifth day, पांचवा दिन आ जाएगा। now you become normal. कोई नहीं, कभी-कभी तो चलता है। Now it's become your habit. आदत आ जाएगी। Now you become a character. फिर आपका व्यक्तित्व बन जाएगा झूठ बोलना। Now you become, नहीं फर्क पड़ता. So that is how the sin comes. तो पाप ऐसे आपके अंदर घुस गया। That is why today sometime मैं नहीं आप लोग को चर्च नहीं गया फर्स्ट डे तो आपको इतना घबराओ जाएंगे पसंद नहीं होते. नेक्स्ट संडे भी नहीं गया, नेक्स्ट संडे भी नहीं गया, आप इसी चलते मतलब नॉर्मल हो जाएंगे. चल जाना फर्क नहीं. घर में भी बैठा सेम, चाय में बैठा सेम. Because now the first day you are now Holy Spirit धीरे-धीरे आपका लाइफ से काम नहीं हो रहा था. So now you become Satan capture now. That is why the day that you घबराहट होते तो हैं, इसलिए जब पहला दिन जब घबराहट होती है पाप करने के बाद, realize and never do it. उसी समय आप रियलाइज कर लो दोबारा ना करें। And never do again and clean yourself, move अपने को forward. साफ करो और फिर से उठ जाए, गिरे ना रह जाए। Never allow the devil to come and do it. शैतान को अपने अंदर घर बनाने ना दे। See how the Satan comes. शैतान कैसे आता है? I will tell you the bird. Bird शुरुआत बस। Syria. अच्छा, बर्ड पास है, चिड़िया की कहानी बता। सीरिया क्या होता है? सीरिया को बच्चा पैदा करने के लिए ढूंढते हैं घर पे और ट्री पे. मतलब वो बच्चा पैदा करने के लिए घोंसला या ट्री या पेड़ ढूंढती है। So now ब्रांच को मिलते हैं, एक टहनी मिलती है और आपके घर को मिलते हैं. आपका घर की छत मिल गई मैं ऑब्जर्व कर रहा था. और ये ठीक पास से मैंने ध्यान दिया। मेरे घर में कबूतर आता था, ठीक है? तो क्या एग्जॉस्ट फैन का अंदर वो होल था. तो होल था तो ना वो कबूतर एक टाइम में ऐसा आया, दो टाइम में क्या था लिप ग्रास लेके आया. तो मेरे किचन में मैं चर्च में आते तो किचन में सारे फैलाता है. मैं सोचती कहाँ से आया? तो मैं दिखते तो चिड़िया ना रोज पकड़ के आते हैं, पकड़ के डालते तो नीचे खाते था. तो मेरा रोज भगाता था, मेरे को पसंद नहीं था. नंबर 1 भी पोती भी करता था. तो किचन अंदर नीचे आता था. तो मेरा स्टिक डाल के सुबह शाम ऐसे भगाता था. लेकिन मैं चर्च में होते होता था तो होते तो बाद में शाम में तो आया. Slowly he made a house. धीरे-धीरे उसने घर बनाना शुरू कर दिया। And he completely made a house. और पूरा मस्त घोंसला बना दिया। Then he put अंडा. तो उसमें अंडा भी आ गया। तो मेरे दिल क्या हो रहा है? देखने के आया तो 2 अंडा था. तो एक अंडा तो किचन में फैला. मैं एक दिन आया तो अंडा था. मैंने ये अंडा कहाँ से आया? पुराना फेंक. तो वहाँ पर आता था कबूतर का घर था. So now I said no, I don't want to give you this house. तो बात ये नहीं, मुझे पसंद नहीं है ऐसे घोंसला करके. Because if I keep this अंडा, अगर ये अंडा रखेगी, then you will dwell many days and you will do pudding. Then you will enter to my kitchen. तो बहुत दिन रहता रहेगा, फिर यहाँ पे सुसु पोटी करता रहेगा, तो रहता ही रहेगा किचन के अंदर. So I removed the house. वहाँ से घोंसला उठा के फेंक दिया. And I removed the house and I removed the अंडा. अंडा भी फेंक दिया. Then I said never come again. तो पास्टर से बोल दिया दोबारा मत आइए. And never come again. और वो नहीं आया. Satan is like that. शैतान ऐसा है. First thing, पहले आएगा वो, आपका पास में घूमते रहेंगे, ढूंढते कहाँ गुजारेंगे, कहाँ आपका weak point. कि कहाँ की कमजोरी वो भी ढूंढेगा, कहाँ से घुस सकता हूँ मैं अंदर. So रोज बाहर जैसा फ्लाई करेंगे आपको ऊपर. तो फ्लाई करके आपको कमजोरी की स्टडी करते हैं और आज धीरे एक स्टिक डाल देंगे, 2 स्टिक डालेंगे, 3 स्टिक डालेंगे, सारे जने तो पूरा घर बनाता है तो पूरा कैप्चर करते हैं. इसके लिए शैतान क्या बोलते हैं? ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, मैंने ले लिया. शैतान ऑलवेज स्पीक. शैतान ऐसे एक बार बोलता है
Satan said, this is mine. अरे तो मेरा है, मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा, I will not leave her. मैं नहीं निकलूंगा, I will kill her. मैं मार दूंगा। So many things is just happening. चर्च में कितना कुछ वो बोलता है, Satan said, they are not, that belongs to them. वो उनका नहीं है। So now you allow them to come. क्योंकि आपने उनको अनुमति दे दी शैतान को रोज रोज के घर बनाने की, तो वो रहने लग गया। So now he claimed himself that this is my इसलिए वो कहता house. है तो मेरा है, This is my body. ये मेरा घर है, मैंने बलिदान मेरा किया, शरीर है। मैंने 30 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं रखती हूँ, मेरा है. So they claim. See, when you allow them now, they claim that this is my तो body. जब वो धीरे 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 रहने लगता है तो फिर घर बन जाता है, तो वो कहता है अब तो ये मेरा ही घर है। But by God's grace, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, we are saved. हम बच गए। Otherwise, he will dwell and he is the owner. He will take you where is his house. नहीं सब शैतान का घर बन के घूमते रहते हैं और वो आपके ऊपर मालिक बन के रहता है। That is why Jesus come. इसलिए यीशु मसीह आए, He said, no, this is not your house. बोले नहीं तुम्हारा घर नहीं है, I am the one who ये created. मैंने बनाया है, Go. निकल। Then they go. तो चला जाता है। How much they claim also. कितना ही बोले मेरा मेरा मेरा, Because they are not. पर वो नहीं है, They are cheater. वो झूठा है, They are वो deceiver. धोखा देता है, They are not belongs to them. वो उनका नहीं है। But they claim that और this कहते is नहीं mine. मेरा ही घर है। ऐसा होता है ना, प्रॉपर्टी में क्या में लड़ाई करते हैं, नहीं ये मेरा जमीन है, अब निकलना पड़ता है. So people who are wrong, who are cheater, they claim themselves. तो लोग धोखाबाजी करते हैं और दूसरे की चीज को कहते हैं मेरा है, ये मैं लूंगा। That is how the Satan. शैतान का कार्य भी That ऐसे is है। why to overcome these things, तो इन चीजों पर पार पाने के you लिए need to be obey the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा की बात So को Holy मानना Spirit जरूरी is है। just like a person. तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के You समान है। can talk. आप बात कर You सकते हैं, can be a best friend. आप उसको मित्र बना सकते Share to him. हैं, उनसे बातें बांट सकते Walk with हैं, him. कार्य कर सकते हैं। Then you will every day your life will see तो आपका peace, जीवन हर रोज शांतिमय हो जाए, joy, आनंद हो जाए। and we want to have the gift of the Holy Spirit. अब हमें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए, You want healing? आपको चंगाई You चाहिए, want miracle? छुटकारा You चाहिए, want चंगाई pastor? चाहिए, You want missionary? आपको पास्टर बनना है, इवेंजलिस्ट बनना है, You मिशनरी बनना है, want so many things. आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। When the Holy Spirit is जब पवित्र inside, आत्मा आपके अंदर आता है automatically, तो अपने आप ये वरदान दिखते हैं, because He carried those things. क्योंकि वो वरदान लेकर घूमता है। And we also say, Lord, I want peace. आप बोलते हैं मुझे शांति चाहिए। See, all these things are the Holy Spirit fruit. तो ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। So without the Holy Spirit, तो बिना पवित्र आत्मा के you will never have patience. आपके अंदर कोई धीरज नहीं You है, will never have self-control. आपके अंदर नियंत्रण You will नहीं never होगा, have love. आपके अंदर प्रेम नहीं You will होगा, never have forgiveness. आपके अंदर माफी नहीं You होगी, will never have righteousness. आपके अंदर धार्मिकता नहीं You will होगी, never have truthfulness. आपके अंदर सच्चाई नहीं You will होगी, never have endurance. आपके अंदर धीरज और सहनशक्ति नहीं होगी। But when the Holy Spirit लेकिन is जब there, पवित्र आत्मा आता है, you can easy to forgive आप others. लोगों को आराम से कोई बात नहीं You होगी, can easy to control. आप अपने आप पे संयम रख पाते You हैं, can easy to live a holy आप life. पवित्र जीवन जी पाते हैं, You can easy to live a righteous आप life. एक धर्मी जीवन जी पाते You हैं, can easy to live a fruitful life. आप एक सच्चा जीवन जी पाते हैं, You can easy to live a godly life आप एक पवित्र एक परमेश्वरीय ईश्वरीय जीवन जी पाते हैं through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So we need to have that Holy Spirit तो friendship. आपको पवित्र आत्मा से मित्रता जरूरी है। Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा by के our strength, हमारे by सामर्थ्य से, our power, हमारी शक्ति by से, our wisdom, हमारी बुद्धि से, by our education, हमारी पढ़ाई लिखाई से, by our money, हमारे पैसे से we cannot do हम nothing. नहीं कर सकते। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के we साथ can do all हम things सब कुछ कर सकते हैं through Jesus Christ. यीशु के द्वारा। Amen? Amen. I'm going to finish soon. So Holy Spirit is the one who dwells inside us forever. तो पवित्र आत्मा वो है जो हमारे अंदर हमेशा रहता है। And then Holy Spirit is the one who giving a power and hope. तो पवित्र आत्मा ही हमें उम्मीद और सामर्थ्य देता है। Turn to the Romans chapter 15 verse 13. रोमियो की पुस्तक Romans chapter 13 verse 15 and 13. 15, 13. Holy Spirit is the one who give you power and who give you hope. हम खोलते हैं रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री 13 हाँ 13 15 13 13 का 15 हाँ 15 13 15 का 13 रोमियो 15 का 13। हाँ पढ़ना। परमेश्वर जो आशा देता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Amen. See, by the Holy Spirit only, पवित्र आत्मा के द्वारा He ही will give you power. तो आपको सामर्थ्य He will आता give है, you hope. आपको उम्मीद आती है। 224 Because of timing, I will just write down your Bible verse. Okay? वहाँ से ये बाइबल वर्ड पढ़ूंगी नहीं, लेकिन सिर्फ नंबर बता रही हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट। See, the Holy Spirit is the one पवित्र आत्मा ही है who giving you courage. आपको हिम्मत देता है। In the book of Acts chapter 9 verse 31, हम पढ़ते हैं पृथ्वी किताब 9 के 31 के अंदर Holy Spirit is the one who giving you पवित्र आत्मा ही आपको हियाव देता है, courage.
हिम्मत देता है। Holy Spirit is the one who giving you strength. आपको सामर्थ देता है। Ephesians 3:16. इफिसियों 3:16 He give you strength. वो आपको सामर्थ हम देता है। कमजोर होते हैं तो हम लोग को टक्कर देते हैं कि पवित्र आत्मा का काम है। So when you are weak, He make you strength. जब आप कमजोर होते हैं वो सामर्थ्य बनाता And है। Holy Spirit is the one who teach you. पवित्र आत्मा को सिखाता है। Luke 12:12. लूका 12:12 And Holy Spirit is the one who giving you the conversion, convict to convert to other person. और पवित्र आत्मा ही आपको वो अंदर से हियाव देता है, वो मन को पक्का करता है कि हाँ आप सामने वाले को भी प्रभु To convert the Hindu Muslim to be in जो Christ. इन लोग अविश्वासियों को विश्वासी बनाता है। Holy Spirit is the पवित्र one. आत्मा ही करता है। That's why we say go and preach the gospel. इसलिए फिर जाओ सुसमाचार बांटो। When you see him, जब सुसमाचार Holy बांटोगे Spirit will convict पवित्र the आत्मा person. जो सामने वाले व्यक्ति का मन पक्का करेगा। that's why you call us him. इसलिए आज आप सब बच्चे Somebody is here in the इसलिए Bible. आपको सुसमाचार बताया। Somebody said let us go to church. किसी ने तो बोले कि चर्च चलो। That person after sharing, वो व्यक्ति बोलने के that बाद person after leading to church, और चर्च तक पहुंचाने के they बाद are not doing it. शायद वो आपके साथ नहीं रहते होंगे। They left, वो चले गए। but they leave you Holy Spirit. पर वो पवित्र आत्मा देखकर गया। That Holy Spirit inside you पवित्र आत्मा आपके अंदर है। started working in you. कार्य करने लगा। Then now your life changing. तो आपका जीवन बदलने Then now लगा। you believe Jesus. आप यीशु Then विश्वास now you करने become लगे। the church member. आप चर्च के Then मेंबर now बन you become to know the word of God. आप परमेश्वर का वचन जान This पाए। is how the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का This is go and share the इसमें gospel. जाए और सुसमाचार बांटे। He will convert the people. वो लोग बदलेंगे। Our duty is that. हमारा काम नहीं है बदलना। Spread. हमारा काम है वचन बताना। And if the person is not believing, अगर सामने वाला विश्वास न if करे, the person you say let us go to आप church, इसको चर्च चले not coming, और वो नहीं आए don't be discouraged. तो ये ना हो दुखी ना होके बैठ जाए। That is not your duty. वो आपका काम नहीं है उसको Holy जबरदस्ती Spirit करना। duty. पवित्र आत्मा का काम उसको बंद But our duty. पर हमारा काम था Tell the उसे people. बोलना। Go to church, चर्च चले, read Bible, बाइबल पढ़ लो, pray, प्रार्थना कर लो, believe Jesus, विश्वास कर लो, not in force, जबरदस्ती नहीं कर ले ऐसे नहीं, with love, प्रेम के साथ, with joy, आनंद के साथ, obeying the word of प्रभु के God. वचन में चलते हुए। When you are in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में होंगे, whatever you say, जो आप कहोगे, you have the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अंदर है। you speak to that आप person, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, you are transforming. आप क्या कर रहे हो? पवित्र आत्मा दे रहे हो। Then that spirit will come वो inside आत्मा से उसके अंदर जाएगा and that person will और change. उसका मन बदल जाएगा। Now they believe Jesus. विश्वास कर Now लेगा। they're coming to church. चर्च आ जाएगा। That is how the Holy Spirit. ऐसे पवित्र Why you didn't have Holy पर Spirit? खुद के पास ही नहीं है पवित्र आत्मा। How you give? क्या दोगे? Then you won't adjust like hell. You know, तो fell वचन- into the dry तो ground. वचन के अंदर नीचे गिर रहे हो, उसके अंदर तो नहीं जाएंगे। That is why have the fast. तो पहले खुद अपने आप को प्रभु में स्ट्रॉन्ग करें। Have the word of God fast. परमेश्वर का वचन अपने आप में स्ट्रॉन्ग करें। Obey the Holy प्रभु Spirit. के वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। Walk with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के साथ चले। Then whatever you तो do, आप जो भी करोगे it will happen. होने लग जाएगा। Without struggle, मुश्किल नहीं होगा। without wisdom, without education. बिना बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं हो That जाएगा। is why Peter इसलिए देखते हैं पतरस is a fisherman. मछुआरा था। In the 12 disciples, 12 चेलों में that nobody is not educated. कोई पढ़ा लिखा नहीं, सभी अनपढ़ थे। शायद मत्ती थोड़ा पढ़ा था। Matthew is the tax क्योंकि मत्ती collector. टैक्स कलेक्टर था। And also Andrew, ये सब John, आधे तो मछुआरे थे, सब अनपढ़ ही थे। Andrew, John, Peter, they are the fishermen. सारे फिशरमैन थे, मछुआरे थे। But when the Holy Spirit लेकिन comes, जब पवित्र आत्मा आया, they become so wise, इतने बुद्धिमान हो गए, they become so knowledge, इतने समझदार हो they गए, become so powerful. इतने सामर्थ्य हो गए। That's why today we read about Peter तो हम पतरस के बारे में पढ़ते कि बाइबल लिख दी and the whole universe और दुनिया आप देखें कितने until Jesus Christ जब तक comes. यीशु मसीह नहीं आ जाते, His name will never end. हम इन अनपढ़ों का नाम कभी नहीं भूल So सकते। now, अब ये when you देखिए, walk with the Holy तो Spirit, जब पवित्र आत्मा के साथ when चलते you हैं, are live with the Holy जब Spirit, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, you will see greatness in लोग you. आपके अंदर जब कितने छोटे कितने अनपढ़ Your वहां तक देखते success, हैं। your prosperity, ये बंदा बहुत अच्छा your है, healing, your और ये miracle, चमत्कार करता your है, ministry, आप लोगों को सेविकाएं You करते हो, walk. आप कार्य करते हो। even though you die, जब आप मर भी you जाओगे go ना, to heaven, स्वर्ग में जाओगे ना, people will talk तो about you. कहेंगे यार ये व्यक्ति बहुत बढ़िया था, सुसमाचार बता के Even गया है। though I die, पास्टर के जब पास्टर भी मर जाए, my name will never die. लेकिन नाम कभी नहीं मरेगा पास्टर का भाई, Because how the Holy Spirit क्योंकि works. पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर लिया है। I believe ये विश्वास when I है। die also, पास्टर के जब मैं मर भी जाऊंगी, you will all the days of your life. जब तक हम जिंदा है कम से कम तो मेरे pastor अब याद रखिए, आप pastor को नहीं थी, उन्होंने ऐसे you किया। will transfer your तो जो हमने सीखा grandchildren. है वो आने वाली पीढ़ियों को भी देंगे। हमारा पास्टर ये सिखाते थे। So now that name will never end. तो नाम कभी खत्म नहीं होता है, But if the person doesn't know anything, पर वो व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है। see today many great people, आज die. बहुत सारे महान लोग, Many scholars die, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मर many गए, professors die, बहुत सारे प्रोफेसर्स मर गए, many people die. बहुत लोग मर गए। Don't know their name. आज उनके नाम पता है आप?
We don't know what is their हमें नहीं पता क्या Only करने गए few people. कुछ ही लोगों को पता होगा। India freedom fighters, so many people. अब लेकिन भारत के आप देखो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी So कितने many लोग थे? sacrifice for India. कितने लोगों ने बलिदान दिए? But we know लेकिन नाम तो कुछ ही के पता है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पता है, Subhash Chandra शिवाजी Bose, से बहुत सी पता है, पर मरे तो लाखों थे। these things. So if you walk with the तो ऐसे जब आप पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते हैं, when you die, जब आप मर भी जाओगे, you never die. आपका नाम कभी नहीं मरेगा। God will carry परमेश्वर आपका नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक लेकर what जाएगा। you have done क्योंकि for आपने God. जो प्रभु के लिए किया है, How you will do. जो आपने प्रभु के आगे I में माना believe है, that even the Bajinder Singh, आज से कह रही जो बलिंदर सिंह जी भी है, God is using him also. परमेश्वर ने उनको भी तो इस्तेमाल किया है। Many people believe. बहुत लोगों ने विश्वास किया Even है, he is go to jail. चाहे वो जेल में जाए, Even though he left in the world, चाहे वो दुनिया भी छोड़ दे, he lived Jesus Christ. लेकिन उन्होंने जो यीशु मसीह दिया है In लोगों the life of the people, लोगों के जीवन में डाला है, those people वो लोग will never forgive उसका this. नाम नहीं भूलेंगे And this name और ये नाम will never go away. कभी भी जाएगा नहीं। This name will always bring to Punjab. ये नाम पंजाब में हमेशा रहेगा। So that is how God's work तो is. प्रभु का काम ऐसा है। You are ordinary person. आप कितने साधारण व्यक्ति You हो, become an आप extraordinary. अद्भुत हो जाते हैं। So when you move with the Holy तो Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते you हैं, become ordinary person. You अब- become an आप extraordinary person. असाधारण एक अद्भुत व्यक्ति बन जाते हैं। Nobody know you. कोई पहले नहीं जानता था But when you walk with the Holy लेकिन जब Spirit, पवित्र आत्मा चलने लग the गए, whole world open दुनिया their की आंखें eyes. खुल जाती, अरे ये भी है, ये भी है, ये ये भी है। one night से नहीं होगा. इस सोचता मैं Holy Spirit में जा रहा हूँ. सही में मैं सोचा, तो कल सारी no. God's work is परमेश्वर कार्य धीरे-धीरे step by बढ़ता है। step. You follow obedience आप to प्रभु की obedience. जब एक आज्ञा मानते हो, दूसरी आज्ञा मानते हो, तीसरी आज्ञा Then मानते हो, slowly open, and the end you will just. ऐसे धीरे-धीरे आप बढ़ते हो और फिर Today every big people, आज आप देखिए जो भी every great people, आज जो भी बड़ा व्यक्ति है, hear their testimony, आप उनकी कहानियों को सुन लो, hear their story. आप उनकी कहानियों को सुनो। Everyone started for the हर कोई nothing. बताएगा कि मैं कहाँ नीचे से मैंने शुरुआत करी। That one small girl, बजिंदा का लड़की बता रहा था न्यूज़ में, आप लोग मेरा पापा को पता नहीं कैसे कहाँ से पहुँच जाएगा. So the girl बता रहा था, देखा ना? मेरा I think he is a 5 year, 6 year. My father was suffered, going through so many things. Today he reached up to here, and nobody knows. तो वो लड़की बता रही थी कि आपको नहीं पता कि मेरे पापा ने कितना सहा है, शुरुआत से लेके अंत तक आज वो इतने बड़े बने हैं, उसके लिए उन्होंने कितना सहा है। We go through so many endurance. बहुत सारा हमने भी सहा है। They go through so many persecution. बहुत सारा सताव भी They हुआ है। go through so many wrong accusation. बहुत सारे लोग उनके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाते हैं। So to become a great, तो महान बनने के लिए ऐसे ना सोचो बड़े आसानी से बन जाएंगे आप। if you are not patient, अगर आप में धीरज नहीं है, things come. चीजें आई, You hit and you आपने come. ब्लास्ट कर दिया, मार दिया, तोड़ दिया, But to become a great, लेकिन ऐसे नहीं होगा। Patient, बड़ा बनने के लिए humble, धीरज, सहन शक्ति, नम्रता, obey God. दीनता, संयम और प्रभु की आज्ञा को मानना step by step. धीरे धीरे होता है। Then the Lord will take you to one फिर step, प्रभु another आपको एक step. स्टेप सीढ़ी 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 करके बड़ा कर देता Then the whole world will see, है। ये wow, दुनिया आपको जान देती है this person कि ये is. व्यक्ति तो हाँ That सच is में how we pray. God. ऐसे महानता है। Today you pray, oh मैं बड़ा हो जाएगा. Today you fasting, oh मेरा समाप्त हो जाएगा. नहीं होता. सारे चीज कदम से जाना पड़ता है. वो कब बात हम पहुंचाए. मेरे लाइफ में भी ऐसे अभी इत तक पहुंचाया. मैं पहले बहुत सफर करती थी. I am not enjoy the people's I enjoy. तो पास कहीं जैसे आजकल जो बच्चे अपने बचपने का आनंद उठाते, मैंने कभी नहीं उठाया। I never enjoy childhood. पास कहीं मैंने बचपन में कभी आनंद नहीं उठाया। I used to live with under somebody. पास कहीं मैं हमेशा किसी के नीचे मैंने काम किया I है। used to be a servant पास कहीं एक नौकर की तरह कार्य करती थी, who studied said. जैसे अपनी पढ़ाई के लिए। Holidays I didn't go home. छुट्टी के दिन भी कभी बाहर छुट्टी नहीं मिलती थी। Coming school, going, come back. I used to carry, cook food. All the things people go to play, job, this thing I never enjoyed. जिनके घर में काम करते उनके बच्चों को संभालना होता, स्कूल से खुद आती थी, लेकिन दूसरे के बच्चों को उठा उठा के Early morning I wake up, cook food, and I was to सुबह school. उठती थी, खाना बना के स्कूल जाती थी। And then also whatever I want to wear, जो भी पहनने का मन करता था, I never get it. वो कभी मिलता ही नहीं था। But when God is allowing me, लेकिन जब परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया, today whatever I want आज to पास wear, के मुझे जो चाहिए, whatever I want to जो do, मेरा खाने का मन करता है, and to what is that the past that what I suffered. लेकिन पहले जो सहा है, Now I enjoy. पास के आज मैं आनंद But उठाता हूँ। those days, लेकिन वो दिन if I not sacrifice, अगर उसने पास ने बलिदान नहीं दिए I will होते, never be here. तो आज यहाँ खड़ी नहीं होती। so life has so many things. तो जीवन में बहुत कुछ So to होता है। become a great, तो एक महान we बनने के need to लिए have a lot of आपको sacrifice. बहुत बलिदान देने पड़ते
And for me also this is not enough. पास्टर कह रही मैं ये नहीं सोचती कि मैंने बस पा लिया I हो am गया। not yet doing nothing. अभी भी पास्टर ने कुछ खास नहीं किया I है। need to do more पास्टर मुझे और बलिदान अभी देने पड़ेंगे। I need to more sacrifice. जितना बड़ा बनना है उतने बड़े बलिदान देने पड़ेंगे। So that is the life until we go to heaven. जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाते So to have that, so by the Holy Spirit तो only, पवित्र आत्मा के द्वारा ही you will get strength, आपको सामर्थ्य you मिलता get है, power, आपको सामर्थ्य you मिलता get है, wisdom, आपको बुद्धि you मिलती get है, knowledge, आपको ज्ञान मिलता है and you become और आप extraordinary. असाधारण मतलब कि अद्भुत व्यक्ति बन पाते हैं। So fill with the Holy तो Spirit. पवित्र आत्मा से भरना शुरू करें। Move with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ रहें। Walk with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ चलें। He is your best friend. वो आपका सच्चा मित्र है। He is not your boss. वो आपका बॉस मालिक नहीं बन के बैठा। You don't want to be a leader. वो लीडर बन के नहीं You बैठा। don't want to be your principal. आपका प्रिंसिपल बन के You नहीं don't बैठा। want to be your teacher. वो आपका टीचर बन के नहीं बैठा। But Jesus said He will be your teacher. पर यीशु ने कहा कि वो तुम्हें सिखाएगा। But Jesus, God, the Holy Spirit said He wants to be your तो पवित्र friend. आत्मा कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। Friend, what become a friend? मित्र कैसे बनते हैं? We share one another. छोटी छोटी बात बांटते हैं, Obey one another. बात भी मानते हैं। If you did or your friend never obey, अगर आपके दोस्त आपकी बात ना माने, then that friendship अरे cut off. दोस्ती तो बेकार है तो। But when the friend लेकिन is जब दोस्त obeying, दूसरे की बात मानते हैं, obey one another, एक दूसरे की बात मानते understanding one हैं, another, समझते हैं, respect one इज्जत another, करते हैं, no putting down one एक another, दूसरे को नीचे नहीं उठा गिराते then हैं, you can have that friendship तो forever. आपकी वो दोस्ती लंबे समय तक चलती है। So the same thing, Holy Spirit is your best. तो पवित्र आत्मा आपका मित्र है। Jesus Christ is our best. यीशु मसीह आपका मित्र है And He is the one और वो ही है who giving you strength, जो आपको सामर्थ्य देता who है, giving you power, आपको सामर्थ्य He बुद्धि giving देता you है, wisdom, आपको बुद्धि He देता है, giving knowledge, आपको समझ देता He है, make you आपको extraordinary. असाधारण अद्भुत व्यक्ति बनाता Or है He is the one और वो ही है who come with the gift, वो वरदान के साथ आता है। the gift of the 9 gift of the वो Holy Spirit, 9 फल पवित्र आत्मा के जो है and 9 fruit of the Holy Spirit. और जो वरदान है पवित्र आत्मा So in your mind, आपके जीवन you में didn't see the fruit of the आपको Holy अभी Spirit. तक फल नहीं दिखाई दे रहे पवित्र आत्मा के, Second, तो देखो कहीं ना कहीं तो रह गया है, you need to check yourself. कहीं ना कहीं छेद छोड़ दिया है। Lord, produce in my life the आप fruit of प्रार्थना the करें Holy कि Spirit. प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल उपजाओ।